صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ ہر طرح کی تعریف اور توصیف ایک اللہ کے لیے ہی لائق ہے اور سزاوار ہے۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے نا، وہ زندگی کی جو سچائی ہے، جو ریالٹی ہے، اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ آج کی جو یوتھ ہے وہ زندگی کو کس وے میں دیکھ رہی ہے اور کس وے میں اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو سیدھا سا ہمارا جو موضوع ہے یعنی ٹاپک ہے وہ ہے ریئلٹی آف لائف، زندگی کی حقیقت کیا ہے، جو آج بہت لوگ لوگ نہیں بول سکتے، بہت سے نوجوان یا ٹین ایجرز، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں، چلیے بات کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ زندگی جو ہے وہ 4 فیزز میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، یعنی 2 سال سے لے کر کے 10 سال یا 13 سال تک کی مدت ہو، اس میں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور سیکھتے سیکھتے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے۔ 13 سال سے لے کر کے 18 سال تک کی جو ایج ہے اس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں۔ اس کے بعد 18 سال سے لے کر کے بڑھاپا تک کا جو مرحلہ ہے، یعنی پوری انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر جب وہ مرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کافی ایک لمبا مدت جو ہے نا، جو وہ گزارتا ہے زندگی کے ساتھ، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ زندگی ایزی نہیں ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کوئی مووی ہے، کیوں کہ جب تک کچھ اچھا نہیں ہوا تب تک یہ زندگی نہیں۔ حالانکہ یہ سچائی نہیں ہے، زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا ہے نا۔ کیوں کیا ہمیں اتارا ہی گیا ہے یہ کیا بولتے ہیں آزمائش کے لیے، تو ہم آرام کرنے تھوڑی آئے یہاں پہ، ریلیکس کرنے تھوڑی آئے یہاں پہ، یا پھر ہم یہاں موج مستی کرنے تھوڑی آئے جو ہمارے پہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ بے شک مشکلات آنی ہے، کیونکہ ہم اتارے ہی اسی کے لیے گئے، جنت اور جہنم ہمیں اسی بیسس پہ ملنی ہے۔ تو پھر ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، ہمیں ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور بنا مشکلات کی ہماری زندگی نہیں ہے۔ اور آج جو ٹین ایجرز ہے اور نوجوان جو نسل یہ یعنی جو یوتھ ہے نا، جو یوتھ ابھی کیا سوچ رہی ہے، ڈرامے دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں اور ویب سیریز جتنے ہیں اور مووی، سوچتے ہیں لائف از جسٹ لائک اے مووی یا لائف از جسٹ لائک اے ویب سیریز، ڈراما، اینی تھنگ۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ جیسا سوچتے ہو زندگی آپ کے حساب سے نہیں گزرتی ہے، وہ تو اللہ نے لکھا ہے، تقدیر نے جو لکھ کے آیا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے۔ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو پہلے سے پریڈکٹیبل ہے، اللہ نے ہماری تقدیر کو پہلے سے مقرر کر رکھا ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے، یا پھر ہمارا آگے کا گول کیا ہوگا، یا ہمارا رزق کیا ہوگا، رزق کے ذریعہ کیا ہوگا، روزی روٹی کا جو ہمارا ذریعہ ہے وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے اور یعنی جو 2 سال سے لے کر 10 سال یا 11 12 13 سال تک کی جو عمر ہے، اس میں بچہ نہ خواہش کرتا ہے کہ فلاں کھلونا کی خواہش کرتا ہے، کاش مجھے فلاں کھلونا مل جاتا ہے، یا فلاں بیٹ وغیرہ۔ یعنی سیدھا سا بات ہے، وہ اپنی یہ جو ایج ہے، یعنی جو یہ وقت وہ گزارتا ہے 2 سال سے لے کر 13 سال تک کی یہ جو وقت ہے، یہ جو مقرر وقت ہے، وہ جب وہ گزارتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ مطلب
खेल या फिर खिलौना ये सब जितना है ये उसी के लिए, ठीक है। और टीन एज में जब आता है ना वो, तब वो उसकी ख्वाहिश तब्दील हो जाती है, ठीक है। जिनसी जिनसी ख्वाहिशात उसके अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो उसका आदी होने लगता है, क्योंकि ये नई डेवलपमेंट है। अचानक से जब बच्चे के अंदर आती है तो जाहिर सी बात है, अंदर जब बॉडी में चेंजेस आएंगे तो वो जाएगा ही उसी तरफ, ठीक है। तो हम देखें आज हम, हाँ, टीनेजर्स फिर वो उस ख्वाहिशात की, जिनसी ख्वाहिशात के पीछे भागने लगते हैं, ठीक है। दुआ करेंगे उसी के लिए, ठीक है, भागेंगे उसी के लिए। अब जो है, जब इंसान जब इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तब उसके ऊपर फैमिली का ये प्रेशर होता है, खिलाना कैसे है, बच्चे को तरबियत कैसे करनी है, स्कूल में कैसे मतलब अब बच्चों की और फैमिली की टेंशन लेने लगता है वो, ठीक है। और अब उसके बाद बुढ़ापे की जब मुद्दत तक पहुंचता है तो ये सोचता है कि मेरे जो बच्चे हैं मुझे टेंशन दे, उसकी टेंशन, मेरा आखिरी क्या होगा उसकी टेंशन, घर में जो मामला चल रहे हैं, घरेलू वाकयात जो हो रहे उसकी टेंशन। तो देखिए लाइफ में कभी ना सब इजी नहीं हो जाता है, सब कुछ एकदम आपके हिसाब से जैसा आप चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता, कभी नहीं। तो जिंदगी नहीं चलने वाली है, कि अल्लाह ने जो प्रेडिक्ट कर चुका है, अल्लाह ने जो लिख चुका है किस्मत में, वही हमारे साथ होने वाला है और वही होगा, क्योंकि अल्लाह ताला नाज़िर व कादिर है, हाजिर व कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो हमारे किस्मत बदलने पर कादिर है, हमारे किस्मत को चेंज करने पर कादिर है, हमारे किस्मत को अच्छा करने पर कादिर है, और हमारी किस्मत को बुरा करने पर भी कादिर है। उसमें भी कोई हिकमत होगी, ठीक है। तो देखिए जिंदगी ना इतनी मुख्तलिफ है, मूवीज से, सीरीज से, एंड वेब सीरीज से, ड्रामा से। वो तो एक स्क्रिप्टेड होता है, एकदम लाइन बाय लाइन, ये होगा, फला चीज होगी या फला ट्विस्ट आएगा, ठीक है। वो स्क्रिप्टेड होता है। लाइफ इज नॉट स्क्रिप्टेड, या बस हो सकता है वो स्क्रिप्टेड हो, या मतलब है भी, लेकिन वो स्क्रिप्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो स्क्रिप्ट अल्लाह के हाथ में। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारा है एक आजमाइश के लिए। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, आप इजी रहते हैं, आप एग्जाम हॉल में जाते हैं बैठने के लिए, तो आप इजी होके एग्जाम देते हैं, या आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि मुझे पेपर खत्म करना है, लिमिटेड टाइम है मेरे पास, है ना। पेपर जल्दी खत्म करेंगे, या जितना जल्दी और जितना अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे, ज़्यादा उतना अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। तो जिंदगी के साथ भी ऐसा ही होता है ना। और जिंदगी ऐसी ही है, हम यहाँ मजे करने या फिर अय्याशियाँ करने या फिर इस दुनिया की लज्जत को एंजॉय करने नहीं आए। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, मौत हमें कब बुला ले हमारा कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। कल हमारा क्या होगा, अगले सेकंड क्या होगा हमें नहीं पता, अगले मिनट क्या होगा हमें नहीं पता, अगले घंटे क्या होगा हमें नहीं पता, अगले दिन या अगले महीने तो खैर दूर दूर की बातें हैं। क्या होगा, हम एक सेकंड या एक मिनट के मालिक नहीं है। हमें एक मिनट तो पता ही नहीं है कि अगले मिनट मुझे क्या हो जाएगा या आपको क्या हो जाएगा, आप खुद नहीं जानते। आप पूरी फ्यूचर की लंबी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं कि फला एग्जाम देने के बाद मैं फला जॉब को हासिल करूंगा, ठीक है। मैंने अभी इस कमी मुद्दत में ना ऐसे भी लोग देखे जिंदगी भर दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, फला एग्जाम दे रहे हैं, अव्वल नंबर से पास हो रहे, लिहाजा हम ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ठीक है, ला करके अच्छी जॉब हासिल कर रहे हैं। लेकिन जॉब का जो एक जॉब मिला, अगले दिन का इंतकाल हो गया। तो फिर देखें हमारी जिंदगी क्या औकात है, जिस दुनिया के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस दुनिया को हमें छोड़ कर जाना होगा, ठीक है।
ये बड़े बड़े महलात, ये कार, ये घर, जितनी भी सारी अय्याशिया की चीजें, जैसे जितनी भी सारी लग्जरी ऐशो आराम की चीजें, इन सबको हमें छोड़ के जाना होगा। जितने मिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मालिक बन जाए, ये जिंदगी है। और ये मुसाफिर खाना है जिंदगी। एक मरे हुए बकरे की औकात नहीं है इस दुनिया की। एक मरे हुए बकरे की जो औकात होती है ना, वो इस दुनिया की नहीं है, उससे भी गए गुजरी है। और मुसाफिर खाना है, जैसे मुसाफिर आता है, एक पेड़ के नीचे बैठता है, फिर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। उसको थोड़ी अपना, वो उसका मंजिल थोड़ी है, वो पेड़ के नीचे आया, रेस्ट किया और अपने मंजिल की तरफ आगे निकल गया। कैद खाना है ये, कैद खाना, ठीक है। कैद खाने से इंसान जब बाहर निकलता है तो खुशी होती है। तो मौत हमारे लिए खुशी है, ठीक है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा जरिया है मौत जो हमें अपने जिंदगी और दुनिया और जन्नत से दूर बीच में, और बशर्त हमारा अमाल कैसे, अपने अमाल को भी हमको देखना है ना? और ठीक है, तो देखिए, ये हम लोग जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। ये मूवी नहीं है, ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। जिंदगी एक बहुत बड़ी हकीकत है। और जिंदगी की एक बहुत बड़ी और हकीकत है मौत, है ना? मौत हमें आनी है। नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मौत का मजा चखना है, ठीक है। और जब हम जिंदगी के बारे में जब बात करें ना, तो ये जो पैदाइश से लेकर के मौत का जब वक्त आता है, ये इतने लंबे तो नहीं बोल सकते, छोटी सी मुद्दत है। और इससे मैं डॉक्टर इसरार अहमद उस्ताद, ये मेरे भी उस्ताद रहे हैं जिनको मैंने देख के सीखा है, तो उनकी एक बात है कि जब बंदा पैदा होता है इस दुनिया में, कदम रखता है, तो उसकी कानों में जो अजान दी जाती है, लेकिन बशर्त कोई नमाज नहीं पढ़ाई जाती है ना। अजान तो दी जाती है कानों में, और उस वक्त कोई नमाज नहीं, और जब इंसान मरता है तो उस वक्त नमाज पढ़ी जाती है, अजान नहीं दी जाती। तो देखिए, जिंदगी बस इतनी ही है, अजान से लेकर नमाज तक का वक्त जो है, बस इतनी ही जिंदगी है हमारी। ये जो 60 साल, 50 साल, 40 साल, वैसे खैर मौत की कोई उम्र नहीं है, लिहाजा लेकिन जो भी एवरेज एज जो है लोगों की, यही है 50 साल, 60 साल, 70, 80, उससे ज़्यादा की नहीं है। और उसमें भी इंसान सोचता है कि जवानी में हम थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर लें। वल्लाही ये दुनिया इंजॉयमेंट के लिए नहीं बनी है। हम इसलिए नहीं आए कि यार दुनिया में अय्याशिया करें, अय्याशिया करते फिरे, है ना। अय्याशियों के लिए नहीं है बने, इबादत के लिए बने, अल्लाह की रज़ा के लिए बने, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए बने, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए बने। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, या अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ आपकी मोहब्बत का। वल्लाहि लज़ीम सजदे में जाके ये दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, या अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ आपकी मोहब्बत का। वल्लाहि लज़ीम सजदे में जाके ये दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक, या अल्लाह मैं सवाल करता हूँ आपकी मोहब्बत का और उन लोगों का जो आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो हम आए हैं दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने, जिंदगी का हमारा मकसद है। और जिंदगी हम ऐशो आराम, या फिर ये जिंदगी कभी हमारे लिए ना जन्नत नहीं बन सकती है। लिहाजा क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट थोड़ी है। और मुनाफिकीन के लिए जन्नत है, पूरी दुनिया बनाने में लगे हुए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे को अपना मकसद बनाए रखे हैं। वल्लाही ये जो दुनिया सारी जो वे में जा रही है, ये हमारे खात्मे का वक्त है। धीरे धीरे हम अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे। लिहाजा कयामत का जो कुर्बे कयामत जो है ना, वो बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा, जितना हम सोच भी नहीं सकते। सारे कुछ वाक़यात तो लगभग हो रहे धीरे धीरे। और ये भी एक निशानी है कि लोग पैसे को अपना माबूद बना लेंगे, लिहाजा वैसा ही हो रहा है।
पैसा कमाने के लिए इंसान हराम और हलाल के फर्क को भूल चुका है। ठीक है, तो देखिए फिर हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। वल्ला ये भी एक टॉपिक हम वे में ही जा रहे थे, लेकिन फिर से हम वापस आते हैं जिंदगी के बारे में बात करते हैं। रियलिटी यही है जिंदगी की। रियलिटी यही है कि हम पैदा होते हैं, कुछ देर बाद, कुछ वक्त, कुछ साल या कुछ वक्त के बाद हमारी रूह कब्ज कर ली जाती है और हमें सवाल होता है तुमने क्या किया दुनिया में जाकर, तुम्हारे अमाल क्या थे, हमने इतना वक्त दिया तुम्हें, तुमने ये वक्त को कहाँ गुजारा, ये जवानी कहाँ गुजारी, ये कुव्वत को कैसे हमने, ये जो ताकत थी जो हमने तुम्हें जवानी में दी थी, तुमने कहाँ बिताया, क्या याशिया करने में गुजार दी, या नफसानी ख्वाहिशात के अंदर दब के रह गए, या नफ्स की पैरवी करने लगे, या नफ्स के गिरफ्त में रहे, या अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ा, या रोजा रखा, अल्लाह के हुकूक को अदा किया, है ना। ये सवाल किया जाएगा, ये जिंदगी की रियलिटी है, हकीकत है, रियलिटी ऑफ लाइफ, यही है जिंदगी की हकीकत। तो हम देखते हैं कि मूवी की तरह है, हम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और जब वो चीज हमें मिल गई तो जिंदगी सवर गई। ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है। जिस चीज पे आप ख्वाहिश करें अगर वो आपको मिल जाए तो जिंदगी आपकी आसान हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। जिंदगी की हकीकत है। मिसाल के तौर पर आप फैमिली सिस्टम में है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और आप अलग होते हैं, ठीक है, आप अलग अपने घर को बना के रहते हैं, तो आपका ये मकसद रहेगा काश मेरा घर बन जाए या मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊँ। वल्लाही ये वक्त आता है कि आप उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, आप सोचते हैं मेरी परेशानियां खत्म, मैंने घर बना लिया। वल्लाही ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि आप जो चीज़ हासिल कर ले उसके बाद से आपके पास जितनी परेशानियां वो खत्म हो जाए। वल्लाही कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता ऐसा। वो चीज़ आपको मिल गई, उसके बाद घर के मसाइल, आपके साथ बच्चे हैं, आपकी बीवी है, उसके मसाइल, वो होता ही है। क्योंकि जिंदगी हर शोबे में, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आपकी आजमाइश है। आपकी जिंदगी में जितने सारे वाकयात जो हो रहे हैं वो आपके लिए आजमाइश है। आप यहाँ रिलैक्स करने के लिए, मौज चिल करने के लिए नहीं आए आप। यहाँ आप आए मेहनत करने के लिए, अल्लाह के रजा को हासिल करने के लिए। दुनिया भी कमानी है आपको और आखिरत भी कमानी है। और दुनिया के चक्कर में आखिरत को लोग भूल चुके हैं। आज का जो दौर है वो फितनों का दौर है, बहुत ज्यादा फितना है आज के दौर में। आप अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। कदम कदम पे आपसे गुनाह के जो वसाइल है आपको मौजूद है। इन गुनाहों से बचना होगा हमें जिंदगी में, पूरी जिंदगी में गुनाहों से बचना होगा। नमाजें कायम करनी होगी, रोजे रखने होंगे, अल्लाह के हुकूक को अदा करना होगा। तो हम देख सकते हैं आज का जो हमारा मामला है, हम अपना मामला करे, वल्लाही कंपैरिजन करे कि हम जिंदगी में किस वे में दौड़ रहे हैं। दुनिया की हवस, लगन, मेहनत उसी के लिए कर रहे हैं। वो जितनी सारी ताकत है अपने पास, जितनी ताकत है पूरी दुनिया को लगाने में बर्बाद कर रहे हैं। नमाजें आप बुढ़ापे में जाके पढ़ते हैं, वल्लाही अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में तो वैसे ही आप खत्म हो चुके होते हैं। कुछ पल की जिंदगी बची होती है, फिर अल्लाह आपको बुला लेता है। आप बुढ़ापे में जाकर नमाज पढ़ेंगे। पूरी जवानी तो आपने अय्याशियों में की, तो वल्लाही ये, और जब बुढ़ापे का मुद्दत को पहुंचते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। ऐसी इबादत का कोई मतलब नहीं। बशर्त वल्लाही जो पूरी जिंदगी हालत में था और उससे ये गुमान हुआ कि मतलब वो दिल का मामला है कि वो क्या नीयत रखता है इस बारे में। अगर उसको बुरा लगता है तो अल्लाह से गिड़गड़ा के तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, तो वो अलग मसला हो गया। मतलब माफ़ किया जाएगा, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देंगे कि उसने तौबा किया सच्चे दिल से। ये ज़िंदगी की हकीकत है, वल्लाही फिल्म नहीं है ये। तो ज़िंदगी को गुजारे, नमाजों पे रोज़े रखे, अल्लाह के हुकूक को अदा करे, अपनी ज़िंदगी का मकसद को बनाए कि अल्लाह
और राजी करना ही मेरी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। ठीक है, तो अगली वीडियो जो होगी इंशाल्लाह, ये वीडियो कुछ कुछ दिन के बाद रिलीज कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।